we have with us Miss Annapurna Monga, who's a woman entrepreneur and trying to disrupt the education industry and bringing to the world MentorBox. So she is the founder of a company called MentorBox, and she also holds a degree in Bachelor of Technology from the very prestigious institute named as Motilal Nehru National Institute of Technology. And she's also a Kashmiri Pandit. And she has the working experience of working into different domains like logistics, healthcare, and payment domains, primarily with startups. So MentorBox is an educational company solving a problem we all face while choosing and navigating the right career path. So with this, I'll hand over the session to Ms. Monga, and she'll give a brief of about her company and with the topic that is to understand the basics of startups. So Annapurna, I'll request you to please take over the session from here. Annapurna, we are not able to hear you. There's some problem with the audio. Just a second, I'll unmute. Yeah. Hi. Yeah. Can you hear me now? Yes, now I can hear you. Yeah. So, hi, Shilpa, and welcome all the students, right? And it would be good that if you guys can be interactive and keep asking questions while I go through this flow of the basics of startups, right? A little about myself. Shilpa has already given a good overview, right? I have passed out in IIT Allahabad and I passed out in 2016, right? And I have worked in around 2-3 startups. Not as a co-founder, but as someone working on different domains, whether it's software engineering, product management, or marketing, right? So I basically took that experience to leverage or build my startup before venturing into anything, right? So what I would start with in the basics of a startup is that when you build a startup, the first thing that you should think about, right, as a student, as a college student, that whether my idea is required in the market, right? That's important. Like everyone has an idea, right? But to do that research, that whether your idea is required in the market, whether it's something that even consumers would want to use, if it's a service, or if it's a service, then whether it is something that any user would want to take, right? And how do you do that? You have an idea, right? And then you do a market research, right? So what you do is next, after having an idea, is that you have to create a form, right? Create a form, put out some questions, right? And circulate it among your group, right? Among people next to you, right? Your peers. You can give it to your parents, right? Family members, and ask them that उसमें कुछ questions लिखो, ठीक है? कि क्या क्या है, कि मेरा आइडिया ये है, मैं ये बेचना चाहता हूँ, if it's a product और if it's a service, कि मुझे ये लोगों को ये सर्विस देनी है जहाँ पे मैं उनका शायद if you take of groceries, right? उनकी grocery supply करके भेजूंगा to the place where they are staying. So these are the kind of things. So you need to write these questions. एक form बना के Google form normal, just write these questions and circulate करो. पहले वो information लेके आओ कि आपका जो idea है वो consumers को जरूरत है कि नहीं, अगर और अपने competitors के बारे में समझो and try to understand कि अगर competitors है भी right, then what is it that is not किसका scope अभी covered नहीं है industry में, right? That is the niche और उसी सेगमेंट को आपको टारगेट करना है. तो सेकंड थिंग इज दैट डू द मार्केट रिसर्च अपना कंप्लीट करो, लोगों से पता करो कि आपका जो आइडिया है उसका कोई फायदा है कि नहीं, क्या वो जरूरत है अभी करंटली, या फिर ऑलरेडी उसके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है. डू दैट सेकेंडली, राइट? आफ्टर यू कंप्लीट दैट the market research, which is the second very essential part of beginning any kind of startup or an entrepreneurship or a business, right? So complete that, get the user perspective, ठीक है? कि क्या कि आप लोगों को क्या लगता है, ठीक है? Even in your market research, you can also include
the costing or any other information that you would want, right? So it's basically collection of data आप कंज्यूमर से लोगे, आसपास के लोगों से, और उससे पता करोगे, राइट? उस डेटा को फिर आप एनालाइज करो बैठ के कि मैंने इतना डेटा निकाला है, राइट? कि आई हैव फाउंड दैट दीस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, उन्होंने ये डेटा दिया है, या फिर मेरे पेयर्स से दिया है, ये मेरे पेरेंट्स फैमिली मेंबर से दिया है, उनका एज ग्रुप के हिसाब से देखो कि आपका किसको ज्यादा रिक्वायर्ड है, राइट? यू हैव टू फाइंड, फिर आपके मार्केट रिसर्च में आपको काफी कुछ चीजें मिल जाएगी। फर्स्ट यू विल अंडरस्टैंड कि आपका मार्केट ऑडियंस कौन है, कौन सा एज ग्रुप यू शुड टारगेट, राइट? अब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, राइट? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, आप एक बिस्किट भी बनाओ, राइट? अब सपोज यू क्रिएट अ बिस्किट विच हैज अ फ्लेवर इनसाइड इट, राइट? जो कि मीठा है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। अब आप ये प्रोडक्ट किस एज तक बेच सकते हो? आप 25-30 तक बेच सकते हो ये, बट आफ्टर 30 पीपल माइट नॉट टेक इट, बिकॉज आजकल जो है बहुत सारी डिजीज है, डायबिटीज वगैरह, सो पीपल वुड प्रेफर nowadays prefer those non-sugar biscuits और वैसे टाइप ऑफ प्रोडक्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है? तो आपने वो कर दिया, डिसाइड कर लिया कि टारगेट ऑडियंस क्या है, और आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ, मेरा जो प्रोडक्ट है और जो मैं ऑफर करना चाहता हूँ वो मार्केट को चाहिए, ठीक है? तो फिर एक तरह से आपका मार्केट रिसर्च कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके आइडिया का आपको पायलट करना होता है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय पायलट इज दैट कि इवन सपोज यू आर selling a bicycle, I mean going on a bicycle and dropping things, right? Give this service for free for some time, ठीक है? 15 दिन तक इस सर्विस को फॉर फ्री दो, या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो पहले उसकी सैंपल्स भेजो, राइट? तो देयर टू टाइप्स, देयर इज सर्विस एंड देयर इज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में और एस्थेटिक्स आ जाते हैं, राइट? बिकॉज आई हैव प्राइमरली वर्कड ऑन सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स। प्रोडक्ट बेस्ड में देयर इज अ लॉट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व, राइट? तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, अगर आप स्टार्टअप बना रहे हो विच इज मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव, in that case you would have to definitely go for thinking that do you have, आपके पास उतने पैसे हैं कि आप लगा पाओगे उस पे, because that's very necessary, right? If not, आपके आइडिया को वाउच करने के लिए कुछ लोग हैं जो आपको वो अमाउंट देंगे और अलाउ करेंगे कि आप अपना ये स्टार्टअप और आइडिया ट्राई आउट कर सको। तो एक प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट ऐसा डिलीवर करना है, राइट? लाइक whether it's a technological product or whether you're manufacturing goods, food goods or anything, right? उस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसको कैसे एक तो उस केस में प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के एस्थेटिक्स, वो इंग्रेडिएंट्स में कितनी कॉस्टिंग आपको लगेगी, वो सब आपको देख के उसके लिए कैपिटल जोड़ना पड़ेगा, राइट? बिकॉज इट्स नॉट एन इजी टास्क। और फिर आपको वो सब सोचना पड़ेगा, एंड इन द मीन टाइम इंडिविजुअली जैसे आपने सोचा, सपोज यू थॉट अबाउट सेलिंग अ न्यू बिस्किट ब्रांड विद अ न्यू टेस्ट, ठीक है? तो आपने वो घर पे बनाया, ठीक है? एंड यू सोल्ड इट इन द मार्केट, तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सेल करो बिफोर, राइट? फर्स्ट गिव देम फॉर फ्री फॉर सम टाइम, आफ्टर गिविंग इट फॉर फ्री टेक दैट फीडबैक फ्रॉम देम कि उनको क्या लगता है कि आपके बिस्किट में क्या अलग है, राइट? कि व्हाट इज इट दैट आप उनको लगता है कि आपका बिस्किट लोग बाय करेंगे, नहीं बाय करेंगे, क्यों बाय करेंगे, उसमें क्या अलग है, यूएसपी क्या है आपकी? यूएसपी मीन्स यूजर सेलिंग पॉइंट, राइट? तो आप बाय द यूजर विल बाय योर प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट लोग क्यों बाय करना चाहेंगे? तो दैट वो सब आप यूनिकनेस फाइंड करो, इम्प्रोवाइज करो, राइट? तो जब द रीजन की जो पायलट करते हैं ना, पायलट का मतलब है कि अभी स्टार्टअप शुरू नहीं हुआ है, इट इज जस्ट कि आप आइडिएशन और मार्केट रिसर्च करने के बाद, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च पायलट, राइट? देख रहे हो कि आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है, राइट? और जो आप इंडिविजुअली खुद आइटरेट करके बना रहे हो विद इन योर सेल्फ और विद इन आपका जो नेटवर्क है, क्या वो प्रोडक्ट सही से बिक रहा है कि नहीं, लोग क्यों उसको लाना चाहते हैं, और रिक्वायर्ड है वो कि नहीं, राइट? तो आपका यूएसपी क्या है कि लोग वो अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है, फीडबैक लेना पड़ता है, राइट? लोगों से कि कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं पैकेजिंग में, खुद टेस्ट में कुछ क्या चेंजेस होने चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे चीनी ज्यादा होना चाहिए, चीनी कम होना चाहिए, नमक भी होना चाहिए बिस्किट में,
तो बहुत सारे आइट्रेशंस होते हैं राइट प्रोडक्ट में। तो एक तो ओपन माइंडेड रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑलवेज बी ओपन माइंडेड बिकॉज व्हेन आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो राइट, व्हेन यू स्टार्ट अ स्टार्टअप और यू आर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, आपने जो सोचा है ऐसा नहीं नेसेसरी है कि वही एग्जैक्टली हो। लाइक एट द एंड मतलब विजन होना चाहिए कि दिस आई वांट दैट, कि ये लास्ट में होना चाहिए। लाइक इफ सपोज मैं अपनी स्टार्टअप का बोलूँ, आई हैव एन एजुकेशन स्टार्टअप एंड मैं चाहती हूँ कि लोग अपस्किल हो जाए मेरे स्टार्टअप से फॉर स्किल्स जो अभी taught नहीं है in schools or colleges, like soft skills which has been introduced now, right? कि लोगों को like what I understood from my market research कि अभी जो students है और even the professionals, young professionals India में, they are good at technical abilities, they are good at their skill sets, but they are not able to market their skills, right? अब मेरे पास skills है, right? And मुझे पता है कि मेरे पास skills है, but I have to be able to tell the other person. I need to be able to market myself as a person that मेरे पास ये skill sets है, I can do this well. If I'm not able to do that, if I don't have the right skills, the presentation skills, then उसका कोई फायदा नहीं है having the skill set, which is a requirement। अभी ये बहुत ही important requirement है हमारी country में, and the government has also that's why included these skills। तो मैंने ये find out किया and this was the outcome कि अब मुझे पता है कि मुझे ये करना है, right? So what you also have to do is that market research किया, pilot किया, लोगों से पता किया कि हाँ, फिर end पे अपने product को improvise करके वो बना कि improvisation करके feedback लेके at least for a period of one month I would say, ठीक है, एक महीने के लिए at least you should do a pilot, right? Where you have to take feedback from people, you have to give them the product। या तो अगर आप या तो I would say कि first month में अगर ज्यादा capital intensive नहीं है तो थोड़ा सस्ते में दे दो प्रोडक्ट, ठीक है। गिव इट एट अ डिस्काउंटेड रेट, टेक द फीडबैक लेते रहो लोगों से, वो फीडबैक नोट करके अपना प्रोडक्ट इम्प्रोवाइज करो, सो दैट आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा मार्केट पे वो सीमिंगली बहुत अच्छा होना चाहिए, राइट। तो दैट इज वन ऑफ द स्टेजेस, राइट। अब आई वुड से कि आइडिएशन हो गया, मार्केट रिसर्च हो गया, प्रोडक्ट वॉक थ्रू हो गया, एंड यू गॉट द फीडबैक, एंड आपका प्रोडक्ट इन ऑल आपको पता है कि क्या फीचर्स होने चाहिए उसमें। नाउ कम्स द पार्ट वेर यू हैव टू क्रिएट अ बिजनेस प्लान कि यार 2 साल में मैं आगे क्या करूंगा, ठीक है, इसके साथ मेरा प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से आएगा, मुझे इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एंड कितना कैपिटल इंटेंसिव है। सो यू हैव टू फर्स्ट सी, राइट। अब व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर और जब एक बिजनेस पर्सन हो, इनिशियली आपको सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, राइट। वेदर इट इज ऑफ एन एचआर, अगर आप लोगों को हायर भी कर रहे हो तो यू हैव टू हैव दैट नैक कि यार अब इसको मैंने अपनी टीम में लिया, इसकी स्किल सेट्स में कैसे जज करूँ, राइट, and all these kind of things। So when you're an entrepreneur or business person, आपको at the start point बहुत सारे roles play करने पड़ते हैं, and very importantly what I always said is that if it's a capital intensive product, then you have to take in funding if you are not having your own funds, right? So look towards, once you have done a pilot, तुम्हारे पास feedback है, you have a lot of data, right? तुम्हारे पास इतना डेटा है कि तुम लोगों को दिखा सकते हो। like if you go for an incubation center, right, आप जाके बोल सकते हो कि मैंने ये पायलट किया है कि प्रोडक्ट को इतने लोगों को बेचा है एंड ये प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, लोगों को इसकी जरूरत है, तो कैन यू फंड। तो बेसिकली अगर आप ऐसे ही जाओगे विदाउट एनी रिसर्च और विदाउट थिंकिंग आउट थिंग्स, राइट, तो लोग पीपल विल नॉट बिलीव यू। बट अगर आपके पास डेटा है कि मैंने ये किया है इस महीने, मेरे पास ये फीडबैक है और मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, बट अब मुझे स्केल करना, आई वांट अ लिटिल बिट ऑफ फंड, अभी मेरे आई एम नॉट मॉनेटरली दैट गुड, और अभी गवर्नमेंट के भी काफी स्कीम्स है पीपल, अभी रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एमएसएमई बेस्ड स्टार्टअप, राइट, इज बिकम रियली इजी। पहले ऐसा नहीं था, अभी आपको ऑनलाइन जाके आप अपना कंपनी भी रजिस्टर कर सकते हो, राइट, एज अ सोल प्रोपरेटर। तो दीज थिंग्स आर देयर। तो ये सोचना फिर कि रीच आउट टू पीपल इन योर नेटवर्क कि आप इवन फैमिली के साथ आप रीच कर सकते हो कि मुझे इतना कैपिटल दे दो, आई विल
अपना प्रोडक्ट बना के इतने प्रॉफिट मार्जिन से आई विल डबल इट. So second thing is very important in a manufacturing or a product intensive product that you need to get the funding, right? फंड्स लेने के लिए, एंड फंड्स लेने के लिए लोग क्या देखते हैं, एक तो ये जो मैंने बता दिया डेटा वगैरह का. सेकेंडली बिजनेस मॉडल कि आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, राइट? एवरीवन वांट्स टू नो दैट कि हाँ आपने प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया, लोगों को चाहिए, बट आप लोगों को ये सेल कैसे करोगे और आपको प्रॉफिट कैसे कमाओगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आप किसी को अपना प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए देन कोई फायदा नहीं है, आपका प्रोडक्ट कितना भी अमेजिंग हो, कितना भी अच्छा हो. You have to be able to sell the product. This is, I think, one of the main uh, pain points of a startup or business when you start at the starting point, right? Technology नहीं है, क्योंकि technology के लिए there are many options. Uh, Nothing else is a problem, but selling is a very difficult task. तो जो selling ability है वो एकदम नहीं आती है. You have to reach out to people, थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है कि आप एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या क्या कर सकते हो. इसके लिए बहुत मटेरियल अवेलेबल है स्पेसिफिक टू आपके प्रोडक्ट, स्पेसिफिक टू योर इंडस्ट्री एंड नीश, एंड हाउ यू शुड टारगेट पीपल बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, तो आपको डिफरेंट मॉडल्स ट्राई करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट सेलिंग में, विच यू कैन डू इवन पार्ट ऑफ योर पायलट. ठीक है, पायलट में इट्स नॉट नेसेसरी यू गिव इट फ्री, you give it at a discount rate, that 60-70% डिस्काउंट, एंड उसमें आप आइटरेट करो कि कितने टाइप्स ऑफ मार्केटिंग वेज है. ठीक है, मेरा प्रोडक्ट किस वे में सेल होगा, तो अपने प्रोडक्ट को सेल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड वो द पायलट पार्ट विल सर्व एज अ एग्जाम्पल फॉर यू, वेर यू विल लर्न टू अंडरस्टैंड कि यार यूजर माइंडसेट को कैसे यूज करके वी कैन बी एबल टू सेल, राइट? बिकॉज यूजर, अलग अलग टाइप के यूजर्स का अलग अलग माइंडसेट होता है, and you need to be able to understand that. And I would say कि like I have created the startup mentor box, right? It always have a mentor, even I felt that. ठीक है, मैंने भी खुद mentorship programs के लिए enroll किया था, and there are a lot of free mentorship programs as well, right? So enroll in them and पता करो कि how seasoned professionals have done it, right? Because in things like people think कि पहले, if you know कि हमारे पहले जमाने में हम लोग गुरु के पास जाते थे, रहते थे for 2-3 years, and then we had that connection with our guru and we used to learn things. But आजकल हमारी Indian society में that particular thing is no longer being practiced. वो गुरु शिष्य का जो रोल होता था वो अब नहीं है, जो कि रिक्वायर्ड है, राइट? क्योंकि आप सब कुछ खुद नहीं समझ सकते हो, राइट? लाइक आप लोग मेरा ये टॉक सुन रहे हो और उसके थ्रू आपको कुछ चीजें पता चल रही है, राइट? ऐसे ही मैंने भी बहुत सारे लोगों और सज्जनों का प्रोग्राम सुना था, एंड आई केम टू नो कि ये सब चीजें मुझे पता नहीं है. तो अगर आप किसी एक्सपीरियंस इंडिविजुअल के थ्रू एक्सपीरियंसेस लोगे, उससे क्या फायदा होगा कि एक तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा. ठीक है, अगर आपको अपना स्टार्टअप 1 साल में स्केल करना है, तो यू कैन डू इट फास्टर, राइट? क्योंकि वो एक्सपीरियंस आ जाएगा. बेसिकली अगर आप एक टेक्नोलॉजिस्ट के पास जाओगे, ही विल टेल यू, और आपको टेक्नोलॉजी आती है, ठीक है, ये अज्यूम करते हैं, आप टेक्नोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, बट ही विल टेल यू कि आपको अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन से टूल्स यूज करने चाहिए, कौन सा लैंग्वेज बेटर होगा आपके लिए, व्हाट इज द करंट platforms which are being used in the industry, right? And which is open source. ये सब चीजें वो बता देंगे, तो आपको you will very quickly pick it up, right? उससे इससे अच्छा दैन आपने यार वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बनाई, उसके बाद दूसरी वेबसाइट बनाई, 2-3 बार रीआइटरेट किया, तो you know you have a path कि यार इसी में बनाते हैं and this is what I should do. तो वो डिफाइंड हो जाता है. Whether you go to a sales professional, he will tell you कि सेल्स में क्या क्या तरीके होते हैं, right, to sell a product, and he will tell you कि how to use user mindset. आप ये पढ़ के भी कर सकते हो, but it is going to take a lot of time rather than taking experiences from people. So that is what I'm saying, that this is very important that you get in connect with a lot of people and gather that information कि हाँ मेरे target audience के लिए what should be the knack, right? In different
product modules, right? In different modules, whether it's marketing, whether it's technology, whether it's getting the right resources on board, or whether it's operations. If your product is operation intensive, जिसमें आपको यहाँ से वहाँ जाना होता है, एक chain बनानी होती है, right? So these are the things. So ये बहुत important है at a nascent stage. Connect करना लोगों से, and one more thing, that your network is your net worth. This is something that many people have said, and बहुत important चीज है, because आपका network ही define करता है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे, right? And that does not mean, right, कि in any way that if you're from a humble background कि आप ये network नहीं build कर सकते. By network I mean building with like-minded people, right? अभी हम लोग इस era में है कि हम लोग यहाँ बैठे बैठे US के भी किसी बंदे से बात कर सकते हैं, right? We are able to connect with him. अगर उसको हमारा आइडिया पसंद आया वो हमसे बात करेगा, राइट? अगर हम लोग किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी भी एजुकेशनलिस्ट से कहीं पे भी बात कर सकते हैं, या किसी भी प्रोफेशनल से, क्योंकि अभी वो टाइम है कि आप जूम के थ्रू सब जगह कर सकते हो. अब यू थिंक अबाउट जूम, राइट? व्हाई आई से दैट हम as a country are not able to sell our products is that other than Zoom there are various Indian products like AirMeet, Vidphone, right? जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट? बट व्हाई वाज Zoom able to do well? Because it was able to sell the product worldwide, right? Which although Vidphone and AirMeet are better products, but they're Indian products. So selling point, सेल कैसे करते हैं वो अभी एज ए कंट्री वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स के थ्रू ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हाउ इज इट दैट यू कैन वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं. जैसे चाइना का जूम वर्ल्ड वाइड चला गया, राइट? बट इंडियन कोई प्रोडक्ट, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स है, राइट? जस्ट लाइक हिमालय हर्बल्स व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड. तो दैट्स अनदर थिंग कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सेल कैसे करना है. तो इसलिए मैं ये रिएटरेट कर रही हूँ कि कनेक्टिंग विद पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अभी ये बहुत ईजी है बिकॉज आप क्रॉस बॉर्डर कनेक्शंस भी कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट विद एनीवन अक्रॉस, राइट? And how you have to approach people is that always be very humble, that I just want some of your time. आप कभी भी फ्री हो and you have to be available. किसी भी टाइम पे अगर आप egoistic हो जाते हो as an entrepreneur, you will never be able to succeed because आपके पास एक आइडिया है, बट पीपल why should people believe in you, right? You have to be humble throughout the process. आपको हमेशा ऐसे रहना चाहिए कि हाँ, I will give you the time, मैं फ्री हूँ कभी भी. You should be anytime any person will give you time to help you. You always say that I am available rather than saying कि ये परसों करते हैं. That availability is important for you because you should ये understand करना चाहिए कि उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ज्यादा फर्क पड़ेगा if you have that session with them. So that is very important. So I had finished till ideation pilot कर लिया, और फिर how to take about funding, right? So I have explained till there. Then once you have taken up funding, right? Suppose आपने कुछ x amount define कर लिया है, right? आपको मिल गया है, तो how you multiply that? Business plan बना के how you multiply that, and how you're able to reach that 6-month goal is totally up to you, right? How focused and motivated you are as an entrepreneur or a business person. Anupama, I'm sorry to secondly, interrupt here. We have Yeah. last 10 minutes before the meeting ends here. Okay. So we'll keep last Okay. 5-7 minutes for the question answers as well. Sure. I think we can have the question. I think I've completed almost everything till the funding Okay. part, so which is enough, right? Sure. Yeah. So I would request everyone, if anybody has a question, can write it in the chat box or can unmute themselves. Sonu, I will just unmute you. गुड मॉर्निंग मैम. Good morning, Sonu. मैम सबसे Hi, पहले good morning. मैम सबसे पहले आपने बहुत सारी बातें बताई हमको कि कभी भी हमें जो है प्रोडक्ट अगर मार्केट में उतारना है तो सबसे पहले हमें मार्केट रिसर्च करनी होगी कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की Right. डिमांड है या वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या नहीं करता है. और आपने दूसरी चीज बताई थी कि प्रोडक्ट जो है अगर हमें जब हम रिसर्च करेंगे तो हमें लोगों से फीडबैक लेना होगा कि किस तरीके का जो है प्रोडक्ट Exactly. हमारा क्या कमी है उसके अंदर, ताकि उसको हम डेवलप कर सके. लेकिन मैम मैं
as we know कि business, when we start business, we need to have the lot of skills, like a lot of investment, right knowledge, right expertise, and a good team. So how a middle class person build a business? My question is you. पार्डन, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, लास्ट पे आपने क्या बोला था? मैम, बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। दूसरी चीज एक सही नॉलेज चाहिए होती है। कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि मैम ये कहीं ना कहीं ये फैक्ट है कि दुनिया में जितने भी बिजनेस करते हैं उनमें सिर्फ 1% लोग होते हैं जो पास हो पाते हैं बिजनेस में, 99% फेल हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं उन लोगों के पास राइट नॉलेज नहीं होती, तो नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉलेज कब होगी? जब हमारे पास राइट स्किल्स होंगी, और राइट टीम का भी होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस बिल्ड होगा व्यू होता है पैसिव इनकम पर, और कहीं ना कहीं जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पैसिव इनकम पर ही बिल्ड होना चाहिए, एक्टिव इनकम पर बिजनेस बिल्ड नहीं होता। और जो है उसके अंदर रिस्क भी बहुत होता है मैम। तो एक मिडिल क्लास पर्सन, मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास पर्सन वो कैसे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करे, कहीं ना कहीं कहाँ से स्टार्ट करे, वो किस तरीके से अपनी स्किल्स बिल्डअप करे, कहाँ से इन्वेस्टमेंट लाए, किस तरीके से काम करे? मेरा क्वेश्चन ये है मैम। ओवर टू यू मैम, थैंक यू। लाइक आई सेड राइट कि स्टार्टिंग में कि आप जो मार्केट रिसर्च करते हो राइट, उसके लिए यू डोंट नीड इन्वेस्टमेंट राइट। आपने एक प्रोडक्ट बनाया, आपने उसके 10 पीस बनाए राइट, एक बिस्किट का ही सोचो। डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू डूइंग। इफ यू आर गोइंग फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग इंटेंसिव प्रोडक्ट जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है राइट, in that case your market research data is going to help you. You have to collect data. अगर आपको इन्वेस्टमेंट लेनी है, आजकल इन्वेस्टमेंट लेने के बहुत सोर्सेज है राइट। इवन बैंक्स जो है वो बहुत ही सस्ते में आजकल MSMEs को कम इंटरेस्ट पे दे आर एबल टू गिव यू लोन्स। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट आपको यू हैव टू कन्विंस पीपल दैट योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू वर्क राइट। इसलिए जो डेटा आप कलेक्ट करते हो दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस राइट। एंड ये जो आप कह रहे हो दैट ओनली 1% पीपल आर एबल टू बिल्ड देयर बिजनेसेस, इट्स वेरी कैपिटल इंटेंसिव, ऐसे नहीं है ठीक है, ऐसे नहीं है। दैट इज देयर दैट देयर आर वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू डू इट। बट ऐसा क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पीपल हैव एन आइडिया ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं, वो 6-7 महीने करते हैं उसको परस्यू एंड देन दे लूज होप। एक बिजनेस में क्या होता है राइट, आपको एक ब्रांड बनाने में टाइम लगेगा बेसिकली। तो बेसिकली दे डोंट लूज बिकॉज उनके पास पैसे नहीं होते या इन्वेस्टमेंट नहीं होता या नॉट दे नॉट एबल टू गेट दैट, दे लूज बिकॉज दे गेट डीमोटिवेटेड। वो इन द प्रोसेस हार मान जाते हैं कि यार हमारा प्रोडक्ट नहीं चलेगा। पर एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है, आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि आपका प्रोडक्ट 2-3 महीने में ही चल जाए। ये एक अजम्पशन है, ये बहुत रेयर है, कुछ प्रोडक्ट्स में हुआ है जैसे कि व्हाइट हैट जार जूनियर रिसेंटली they have done this और उनका 3 months में प्रोडक्ट चल गया था। बट दिस इज नॉट द नेसेसिटी विद ऑल। इसीलिए प्रोडक्ट वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला था कि पायलट करना चाहिए। देन ओनली इफ अगर आपका प्रोडक्ट वर्क करे तभी उसको मार्केट में लाओ, वरना मत लाओ। अगर आपको पायलट में पता चल गया कि इसका यूज नहीं है तो बेस्ट है। व्हाट पीपल एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेस पीपल गलत ये करते हैं, वो पहले ही ना रिसर्च करते हैं ना कुछ करते हैं, वो पहले जंप आउट करके बोल देते हैं कि हम लोगों को ये बनाना है, प्रोडक्ट बना के बेचने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है उसके पहले रिसर्च तो करो कि उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, लोगों को चाहिए कि नहीं। लोग क्या करते हैं, बाहर यूएस में ये प्रोडक्ट बनाए, यहाँ पे बना देते हैं, बेचने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर रीजन का अपना एक एक्सक्लूसिव मार्केट होता है और ऑडियंस अलग होती है। तो इसलिए मार्केट रिसर्च में पे मैंने बहुत फोकस डाला था कि वो फर्स्ट कोर होना चाहिए। इफ योर प्रोडक्ट वर्क्स आउट ओनली देन यू शुड गो अहेड एंड ऑलवेज स्टे मोटिवेटेड। 6 महीने में आपका प्रोडक्ट नहीं बहुत अच्छा बनेगा, इट टेक्स टाइम फॉर अ ब्रांड टू बिल्ड ठीक है। इफ यू हैव द पेशेंस I think then only you should go for entrepreneurship because it is going to take time. It's not a one day process कि यार इसमें बहुत आप जल्दी नहीं कर सकते हो। एक ब्रांड को मार्केट में आने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ने के लिए टाइम लगता है। That's all. Shilpa, we can take the next question. Yeah, sure. So if anybody else has a question, can please unmute themselves or write it in the chat box. I think Nishant has added, yeah, 1% is in collective number, yeah, that I understand, but that is what I said, that it's important.
the research, doing the research, right? Right, because that plays a very important role before you kickstart your business. Market research is something that every startup or we recommend to all our students here as well. That it is very important that you understand that if the product is required in the market or not. There's no point in creating a product which does not has a purpose in the market, and then you keep running behind it in order to sell it, and later on, ultimately, you'll have to shut it down. So Exactly. yeah, so meanwhile, we received the next question. I would like to thank you for sharing those basic details, because these are the things that we keep reiterating to all our students and to the startups who are registered with us. That and sometimes, in order to move ahead, we tend to forget the basics of a startup. So thank you for reiterating on those points. And I would once again request the audience, if anybody has a question, could please ask, because we have less than 3 minutes now left for the meeting. Yeah. I think we are good to go here, Annapurna. So I would request, if anybody later has any question, can please write back to me at shilpa@saccindia.org. I'll leave my email ID in the chat box as well. So later, if anybody wants to connect with me offline, can please write back to me on the email ID. And thank you once again, Annapurna. I'll connect with you offline. And now I'll be ending the meeting. Thank you, everyone, for attending the session. Thank you. Thank you, everyone. Have a great day.